हेलो एवरीवन, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने आपको पैसेज किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से उसके आंसर को फाइंड आउट करने हैं, ये इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही आप लोगों को ऑलरेडी बताया भी गया है और ये एज अ रिवीजन के तौर पे है। साथ ही इसमें हम एक होमवर्क के रूप में पैसेज आपको देंगे ताकि आप अपने घर पे बैठ के उसको सॉल्व कर सकें। उसको पढ़ के उसका आंसर निकालिए उसमें से, पैसेज को पढ़ के केयरफुली आप। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पैसेज है। आज हम पैसेज को पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए जो हमारा पैसेज है उसको आइए हम लोग पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ अस नाउ अ डेज कैरी। सबसे पहले बच्चों आपको ये पैसेज बहुत ही ध्यान से और पूरा पूरा एक बार में पढ़ लेना है, फिर उसका अर्थ समझ लेना है और इसके बाद तब आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर उसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो आइए पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ अस नाउ अ डेज कैरी द वर्ल्ड इन आवर पॉकेट। इट इज amazing but true. A mobile phone can make us connected to the rest of the world within a second. Today, mothers do not have to remain in tension if their sons or daughters are late. Businessmen do not have to queue up before a telephone booth to make an important call. Effort from making calls and sending SMS. The mobile phone is neat as a multimedia gadget. It is a calculator, timepiece, calendar, voice recorder, media player, camera, gramming device, net browser, and whatnot. Though the mobile phone is a giant step of technological advancement, its abuse cannot at all be overlooked. Talking or texting while driving may lead to accidents. Students misuse this tool in various ways and give way to social pollution. The invention of mobile phone is a great achievement and play an important part in our daily life. Its many aspects are beneficial, but some are negative effects as well. Its development brought convenience and advantage to the world. Communication between people has become quite easy and very fast. We can keep to contact with others from any place to on the bus, in a street, or in a meeting by sending a message for less than the price of a call. The internet can be accessed through it, and it is also used to click photos, shoot videos. At the same time, parents can control their children, and it is essential during emergencies. Business deals can be done on a single call through cell phones outside the office, in a park, or in any shopping center. This invention gets the world closer to a single point. The internet is also available on the cell phone. The radiation of mobile may be dangerous to health and may be causes a headache, earache, and blurring vision. This invisible radiations destroy the cells located in ear and head, which cause damage to the brain and nephrons in the
head reasons. Its use in certain places cause disturbance sometimes, such as in a classroom, etc. Mobile phone with camera are causing privacy problems, such as using it is as a hidden camera to take picture and make videos. अब हमने देखिए केयरफुली पढ़ लिया, अब इसको एक बार और पढ़ के समझ लेते हैं कि इसमें कहना क्या चाहता है, इस पैसेज में किस तरह से क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है ना। तो सबसे पहले एक बार हम और इसको समझ लें। अभी तो हमने एक बार पूरा पढ़ लिया। मोस्ट ऑफ अस नाउअडेज कैरी द वर्ल्ड इन आवर पॉकेट। हम में से सभी लगभग आजकल अपने जेब में पूरी दुनिया को लेकर चल रहे हैं। इट इज़ अमेजिंग बट ट्रू। आश्चर्य की बात है लेकिन ये सही है। अ मोबाइल फोन can make us connected to the rest of the world within a second. जो मोबाइल फ़ोन है आपका, वो एक सेकंड में पूरी दुनिया से आपको कनेक्ट करा सकता है। Today mothers do not have to remain in tension if their sons or daughters are late. आजकल जो माता पिता हैं या माताएं हैं वो चिंता नहीं करती, और यदि उनके बच्चे बाहर हैं, उनके लड़के लड़कियां उनके बच्चे बाहर हैं, तो वो देर हो रहा है तो वो क्या करते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं हाँ कहाँ है कहाँ नहीं, तो वे चिंतित जो है नहीं होते हैं। बिजनेसमैन डू नॉट हैव टू क्यू अप बिफोर टेलीफोन बूथ टू मेक एन इम्पॉर्टेंट कॉल। जो बिजनेसमैन हैं उन्हें लाइनों में नहीं लगने पड़ते एक इम्पॉर्टेंट कॉल करने के लिए, है ना। तो इट्स वेरी इजी। इसने पूरी लाइफ को एकदम इजी बना दिया है। हम यदि कहीं भी संसार से जुड़ना चाहते हैं, संसार में किसी से भी, तो हम मोबाइल फ़ोन का सहारा लेते ही वो चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम मेकिंग कॉल्स एंड सेंडिंग SMS, हम इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एंड क्या कर सकते हैं, SMS सेंड कर सकते हैं। एंड द मोबाइल फ़ोन इज़ यूज्ड एज अ मल्टीमीडिया गैजेट। और जो ये मोबाइल फ़ोन है इसमें बहुत सारी मल्टीमीडिया गैजेट हैं, यानी ये जो है ये एक तरह से इसमें बहुत सारी मल्टीपर्पज़ गैजेट, यानी इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। इट इज़ अ कैलकुलेटर, यह कैलकुलेटर भी है भाई। यदि हमारे पास जोड़ने घटाने के लिए सडनली कैलकुलेटर नहीं है तो हम मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर भी होता है, टाइम पीस भी होता है, कैलेंडर भी होता है ना, वॉइस रिकॉर्डर भी होता है, मीडिया प्लेयर, कैमरा, गेमिंग डिवाइस, नेट ब्राउजिंग एंड व्हाट नॉट। तो क्या नहीं है इसमें, वो सारी चीज़ें तो हैं, इसीलिए तो हम इसको मल्टीमीडिया गैजेट कहते हैं। दो द मोबाइल फ़ोन इज़ अ जायंट स्टेप ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब देखिए जो मोबाइल फ़ोन है वो एक जायंट भी है एक तरह से। यदि वो उसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारे लिए हानिकारक भी है। इट्स अब्यूजेस कैन नॉट एट ऑल बी ओवरलुक्ड। इट्स अब्यूजेस, इसको जो है सभी अच्छा नहीं मानते हैं। इट्स अब्यूजेस एट ऑल बी ओवरलुक्ड। नेक्स्ट, टॉकिंग और टेक्सटिंग वाइल ड्राइविंग में लीड टू एक्सीडेंट। क्या है, इसके ज़रिए लोग लीड लगाकर कानों में चले जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं या फिर रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो ये सारी जो केसेस हैं क्या है, एक्सीडेंट के हैं। एक्सीडेंट उसके ज़रिए हो जाता है। कहीं ना कहीं लोग इसको ही भला बुरा कहते हैं, जबकि इसमें गलती किसकी होती है, बेसिकली इंसानों की ही होती है। स्टूडेंट्स misuse this tool in various ways and give way to social pollution। जो स्टूडेंट हैं आजकल उसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं इस टूल का, और बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिसके ज़रिए जो एक तरह से समाज को गंदा कर रहे हैं।
तो द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। जो मोबाइल फ़ोन का इन्वेंशन है, जो इसका आविष्कार है, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। और ये हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भाई आजकल क्या है कि हम लोग अगर गलती से मोबाइल छूट गया घर पे, कहीं आ जा रहा है, तो लगता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली खाली सा फील होता है। मतलब कितना अहम रोल हो गया है मोबाइल का हमारे जीवन में, है ना। इसके बिना हम कहीं बात नहीं कर सकते हैं, इसके बिना एसएमएस नहीं कर सकते हैं, इसके बिना हम कहीं अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना हुआ तो हम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कर लेते हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ईज़िली हम कर लेते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो बहुत बड़ा हमारे लिए क्या है, अचीवमेंट है। और हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। Its may aspect are beneficial but some are negative effects as well. तो ये इतनी सारी जो बहुत सारी जो ये उदाहरण दिए गए लाभ के, तो ये सारी लाभ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम भी हैं, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। इट्स डेवलपमेंट ब्रॉड कन्विंस एंड एडवांटेज टू द वर्ल्ड। इसका जो विकास हुआ, ये जो आया है, तो ये एक बहुत बड़ा संसार के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ है ना। कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल हैज़ बिकम क्वाइट इजी एंड वेरी फास्ट। जो कम्युनिकेशन है वो लोगों के बीच बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेज़ गति से अब होने लगा है। We can keep in contact with others from any place on the bus, in a street, or in a meeting by sending a message for less than the price of a call. हम We can keep in contact with others. हम दूसरों के साथ अपना contact रख सकते हैं कहीं भी, किसी भी स्थान पे, चाहे वो बस हो, बस में भी, गली में भी, या फिर किसी मीटिंग में है तो भी हम कोई मैसेज कन्वे कर देते हैं, सेंड कर देते हैं। तो ये सारी सुविधाएं किसके ज़रिए इजीली हो पा रही हैं, मोबाइल के ज़रिए, बिल्कुल। तो द इंटरनेट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू इट एंड इट इज़ आल्सो यूज टू क्लिक फोटोज एंड शूट वीडियोज। इंटरनेट कैन बी एक्सेस्ड, जो इंटरनेट है वो आजकल इसकी पहुंच में है, और उसके ज़रिए क्या हो रहा है कि हम आसानी से जो फ़ोटोज़ है उसको क्लिक कर सकते हैं एंड वीडियोज़ को भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मोबाइल के ज़रिए हम इन सब का लाभ भी ले सकते हैं। At the same time, parents can control their children, and it is essential during emergencies. Business deals can be done on a single call through cell phone outside the office, in a park, or in any shopping center. उसे ठीक उसी समय यदि कुछ भी चाहे कर रहे हैं, चाहे वो फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं या फिर कोई वीडियोज़ बना रहा है, तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए आवश्यक रूप से आवश्यक जो इमरजेंसीज होती हैं, फ़ोन वगैरह, वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, और बिजनेस डील किया जा सकता है ना। और इसके द्वारा सिंगल कॉल किया जा सकता है कहीं भी, ऑफिस के बाहर, कहीं भी, इन अ पार्क, चाहे पार्क में हो, या इसके द्वारा शॉपिंग हम कर सकते हैं, शॉपिंग सेंटर को देख सकते हैं। दिस इन्वेंशन गेट्स द वर्ल्ड क्लोजर टू अ सिंगल पॉइंट। जो ये इन्वेंशन है, जो ये खोज है एक, ये कहीं ना कहीं संसार को पूरी तरह से एकदम नज़दीक ला दिया है। द इंटरनेट इज़ आल्सो अवेलेबल ऑन द सेल फोन। और जो इंटरनेट है वो हमारे सेल फोन में भी अब उपलब्ध है। द रेडिएशन ऑफ मोबाइल में बी डेंजरस टू हेल्थ एंड मे केस अ हेडेक, एयरएक एंड ब्लरिंग विजन। तो जो रेडिएशन इसका है, जो इस मोबाइल से रेडिएशन निकलती हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है।
इसीलिए कहा जाता है कि आप 24 घंटे मोबाइल ना चलाएं। उससे थोड़ी सी यदि आपकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो भी इस्तेमाल करें, यदि आवश्यकता नहीं है तो अपने आप को मोबाइल से थोड़ी देर के लिए दूर रखें, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर हेल्थ। तो कहीं ना कहीं ये आपके हेल्थ के लिए लाभदायक होगा। तो यदि हम मोबाइल जो है ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो रेडिएशंस निकलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए डेंजरस होंगे, सिद्ध होंगे। उससे क्या होगा, हेडेक होगा, ईयरएक होगा, तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो आएंगी। These invisible radiation destroy the cells located in ear and head, which cause damage to the brain and neurons in the head region। तो जो ये इनविजिबल रेडिएशन है, जो अदृश्य ये रेडिएशन है जो निकलती हैं, वो तो दिखाई देती नहीं है, वो क्या करती हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं हमारे सेल्स को। हमारे सेल्स जो हमारे कानों के पास हैं, जो हमारे सिर के पास हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें को वो डिस्ट्रॉय करती हैं। हमारे ब्रेन के पास जो एक न्यूरॉन रहता है उसको वो, और जो हमारे हेड के पास आसपास न्यूरॉन्स रहता है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को वो जो रेडिएशन होता है वो डैमेज कर देता है। इट्स यूज इन सर्टन प्लेस केसेस डिस्टर्बेंस समटाइम्स। तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस का भी बहुत बड़ा कारण है, सच एज इन अ क्लासरूम एट्सेट्रा। ये क्लासरूम को भी डिस्टर्ब करता है। मोबाइल फ़ोन विथ कैमरा आर केजिंग। जो मोबाइल फ़ोन है विथ कैमरा केसिंग प्राइवेसी प्रॉब्लम, यानी इसके द्वारा, जो मोबाइल फ़ोन है इसके द्वारा आप यदि कोई प्राइवेसी है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स होती है। कहीं यदि कोई ऑन करके रख दिया तो इससे बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, सच एज यूजिंग इट्स हिडन कैमरा टू टेक पिक्चर एंड मेक वीडियोस। तो जो हिडन कैमरा होती है वो कहीं ना कहीं पिक्चर ले लेती है और वीडियोस बनाती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हानिकारक हैं, यानी इससे जो प्राइवेसी होती है वो भी प्रॉब्लम में आ जाती है। तो ये हमने समझ लिया कि इस पैसेज में किसके बारे में कहा गया है। बेसिकली मोबाइल के बारे में बताया जा रहा है कि मोबाइल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। तो अब जाहिर सी बात है इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी रहेगा। आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, अ मोबाइल फ़ोन इज़ लाइक अ वर्ल्ड इन आवर पॉकेट एज। क्या है? अ मोबाइल फ़ोन, जो एक मोबाइल फ़ोन है, इज़ लाइक अ वर्ल्ड, वो हमारे लिए संसार में हमारे इज़ लाइक अ वर्ल्ड इन आवर पॉकेट, मतलब ऐसा लग रहा है कि संसार हमारे पॉकेट में है। तो क्या है? इट कैन मेक अस कनेक्टेड। आगे आपको इसके बनाना है ये वर्ड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इट कैन मेक अस कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, आपको अ मोबाइल फ़ोन कैन मेक अस कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ सेकेंड, यानी आपको ये आंसर आपके पैसेज में ही है, बस आपको ढूंढना है। आगे आपको यही होगा, है ना। क्वेश्चन आपका, अ मोबाइल फ़ोन इज़ अ लाइक अ वर्ल्ड, यानी जो मोबाइल फ़ोन है लाइक वर्ल्ड इन अवर पॉकेट, ऐसा लग रहा है कि हमारा जो संसार है वो हमारे पॉकेट में है। तो इसके आगे आपको भरना होगा अ मोबाइल मेक इट कैन, या अ मोबाइल लिख सकते हो, मेक अस कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये आपका पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका है, द पेरेंट्स डू नॉट हैव टू रिमेन इन टेंशन इफ देयर सन्स एंड डॉटर्स आर लेट बिकॉज। अब माता पिता जो हैं वो चिंता नहीं करते हैं यदि उनके बच्चे लेट होते हैं। क्यों? क्योंकि दे कैन कंटैक्ट देयर चिल्ड्रेन ऑन मोबाइल फ़ोन, क्योंकि वो
फ़ोन के ज़रिए पता कर सकते हैं, वो कांटेक्ट कर सकते हैं, दे कैन कांटेक्ट, है ना। तो ये इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट आपका है सम ऑफ द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ अ मोबाइल फ़ोन आर। आपको अब कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स लिखने हैं। अब नेगेटिव इफ़ेक्ट्स में आपने यहाँ पे देखा जो रेडिएशंस निकलते हैं इसके द्वारा क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कर देख लीजिए। आपको इसमें लगभग 1 2 3 4 लिखने हैं, तो ये आप लोग यहाँ से ढूंढ सकते हैं, है ना। तो आइए हम भी बता देते हैं। आपका पहला हो जाएगा टॉकिंग और टेक्सटिंग वाइल ड्राइविंग कैन केस एक्सीडेंट, यानी कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट का कारण होता है वो बात करते हुए या ड्राइविंग करते हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज हुआ, नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ। दूसरा है स्टूडेंट मिस यूज़ देम एंड केस सोशल पॉल्यूशन। जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं वो सोशल पॉल्यूशन को बढ़ाने में पूरी तरह इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को, यानी कहीं ना कहीं वो इसको बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, देयर रेडिएशन में बी डेंजरस टू हेल्थ। कहीं ना कहीं ये रेडिएशन जो निकलती है मोबाइल से वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। एंड नेक्स्ट है देयर यूज इन सर्टेन प्लेसेस केस डिस्टर्बेंस। और ये कुछ ऐसे जगह इस्तेमाल करने से क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। तो ये आपका हो गया 4, है ना। और भी आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ही हैं तो हमने 4 बताया। और आपको अपने मन से अच्छे से इसको नोट्स पे नोटबुक पे इसको अच्छे से आप लोग राइट करिएगा। चौथा क्वेश्चन आपका है एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स कैन बी हैज़ टू वंस हेल्थ हैज। यानी कि ये जो आपका मोबाइल फ़ोन का अत्यधिक जो उपयोग है वो क्या कर सकता है किसी के हेल्थ के साथ। बिल्कुल, इट कैन केज अ हेडेक, ये सर दर्द का कारण हो सकता है, ईयर एक कान दर्द का कारण हो सकता है, एंड ब्लरिंग विजन, कहीं ना कहीं ये आँखों को भी प्रभावित करता है। तो ये सारी केसेस हैं। नेक्स्ट आपका है मोबाइल फ़ोन इज़ अ थ्रेट टू वंस प्राइवेसी। जो मोबाइल फ़ोन है वो कहीं ना कहीं इसके द्वारा किसी की भी प्राइवेसी भंग होती है, तो इट कैन बी यूज्ड एज अ हिडन कैमरा टू टेक पिक्चर्स। इसमें एक हिडन कैमरा होती है जिसके द्वारा पिक्चर्स लिए जा सकते हैं, तो इससे जो प्राइवेसी होती है वो कहीं ना कहीं भंग होती है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इसमें देखिए फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज, यानी जो यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया है, इस पैसेज में जो भी दिया है इसके सेम मीनिंग आपको मिले तो उसका जस्ट आपको लिखना है। इसके सामने क्या है, हैविंग मैनी यूजेस, यानी जिसका बहुत सारा उपयोग हो। तो क्या हो जाएगा, जिसका मतलब ऐसी कोई एक चीज़ जिसमें बहुत सारी उपयोगी चीज़ें हों, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, मल्टीमीडिया। क्या कह सकते हैं, मल्टीमीडिया, यानी विविध। अब मोबाइल फ़ोन एक ही है ना, तो उसमें उसके द्वारा हम जैसे कैलकुलेटर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि फ़ोन करना हुआ तो फ़ोन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि हम किसी को एसएमएस भेजना चाहें तो उसके ज़रिए हम एसएमएस भेज सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो बहुत सारी इसमें विशेषताएं भरी हुई हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, मल्टीमीडिया। एंड नेक्स्ट क्या है, दैट कैन नॉट बी सीन, जो दिखाई न दे। जो दिखाई न दे, इस पैसेज में उसके लिए क्या एक और शब्द यूज़ हुआ है, इनविजिबल, यानी जो अदृश्य हो। जो दिखाई न दे यानी अदृश्य, अदृश्य का इसमें क्या दिया है, इनविजिबल। तो आपका ये हो गया किस तरह से आपको पढ़ना है पैसेज और किस तरह से आपको इसमें जो भी क्वेश्चन दिया है इसका आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो ये तो हो गया आपका एक
और नेक्स्ट जो है पैसेज वो मैंने एज अ होमवर्क आपको दिया है। आप इसको पढ़िए बाकायदा, और पढ़ के इसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर निकालने का इसमें से, इस पैसेज में से प्रयास करिए, ठीक है। और अपने पढ़ाई पर पूर्णतः ध्यान देते हुए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।